Good morning, students. Welcome back. Today's topic is gravitational potential energy. The gravitational potential energy of a body at any point is equal to work done by gravitational force in bringing body from infinity to that point. This is a body, its mass is capital M. There is another body of mass small m. That body is brought by gravitational force of capital M from infinity to point P. Gravitational potential energy is a shared property of two bodies. अकेली बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. Capital M is producing gravitational field and P is any point in the gravitational field of capital M. I have a body of mass M. Its mass is small m. एक बॉडी है. उस बॉडी को कैपिटल M मास की बॉडी ने, यू मे टेक दिस इज अर्थ. When this body of small m mass is at infinite distance from Earth, then force between these two bodies, I mean Earth and this body, is 0. Distance between capital M and small m is infinity, so force is 0. But when this body of small m mass is brought towards this side, distance घटेगी और डिस्टेंस के घटने से ये जो फोर्स अर्थ लगाएगी स्मॉल एम मास की बॉडी पर, ये बढ़ेगी. एक्स घटेगा, फोर्स जो अर्थ लगा रही है स्मॉल एम मास की बॉडी पर, वो बढ़ेगी. तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स of Earth in moving this body of mass small m from infinity to point P. So since force acting on body of mass small m is variable, so I will use technique of integration to calculate work done. We know if force is variable, then this is the formula to calculate work done by force. Force is variable. Now I want to move small m from infinity to P. To take 2 points small capital A and capital B on the path of the body of mass m. तो इस बॉडी को मैं ऐसे, इस बॉडी को इधर लाया जा रहा है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जब यहाँ थी ये स्मॉल एम मास की बॉडी, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर इतनी होगी, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ और ये बॉडी यहाँ पे है. सो स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ टू मूव बॉडी फ्रॉम ए टू बी. तो डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स और इसकी डायरेक्शन इधर होगी फ्रॉम ए टू बी. और जो फोर्स लग रही है स्मॉल एम के ऊपर जो यहाँ पे है वो इधर. So both are parallel. So work done by gravitational force to move small m from A to B is given by this. Theta is 0 because dx vector and f vector are parallel. So cos 0 is 1. So this is the work done. Now I want to calculate total work done to move body from infinity to P. So integrate. Its integration is W. I have written it W infinity to P, which means कि work done to move body from infinity to P बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. सो लिमिट्स डिस्टेंस के ऊपर लगेगी. इनिशियल लिमिट दोनों के बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी थी. फाइनली जब स्मॉल एम यहाँ पहुँच जाएगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल आर. सो इनिशियल वैल्यू ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इन्फिनिटी और फाइनल सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज विल बी आर. पुट वैल्यू ऑफ एफ, ये रहा हमारा एफ, डिस्टेंस हमारी दोनों बॉडीज़ के बीच की एक्स है. सो जी एम एम बाहर कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रह जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, उसको आप एक्स रेस पर -2 लिख सकते हो.
इसका इंटीग्रेशन एज यू नो पावर में हम एक जमा कर देंगे, डिवाइड बाय पावर प्लस 1. सो इट इज़ x की पावर -1 बनेगा. x की पावर -1 मीन्स 1/x, और ये डिनोमिनेटर से -1 आएगा, वो -1 यहाँ लगा दिया, और x रेज़ पावर -1 को 1/x लिख दिया. अप्लाई लिमिट, x की जगह पहले अपर लिमिट, फिर इस x की जगह माइनस करके लोअर लिमिट. 1/∞ 0. सो दिस इज द प्रॉब्लम. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ body of mass m at point P will be equal to this work done. So gravitational potential energy at P is equal to work done by gravitational force to move this body of mass m from infinity to P. So I have denoted GPE, gravitational potential energy at P, by U subscript P. U stands for potential energy, P point के लिए, is equal to work done की वैल्यू ये रही. So this is the gravitational potential energy. So simple, if you want to calculate gravitational potential energy of two bodies, it will be minus G, दोनों बॉडी के भार का प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस. नो स्पेशल केसेस, अगर मैं इस बॉडी को इधर लाता जाऊँ स्मॉल एम मास की, और यहाँ पहुँच जाए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस इट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ -GMM अपॉन ये कैपिटल आ जाएगा. इफ़ m इज़ एट इन्फिनिटी, इसको दूर ले जाओ, इस m को यहाँ से इधर इधर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जब इनफाइनाइट हो जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस. सो पुट हियर इन्फिनिटी, सो u विल बिकम 0. Now gravitational potential energy near the surface of earth at point A. अगर हमारी m मास की बॉडी, स्मॉल m मास की बॉडी यहाँ पे है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आई मीन एट पॉइंट A, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होगी -G मास ऑफ अर्थ, बॉडी का भार, डिवाइड बाय दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इट विल बी कैपिटल R. ये B पॉइंट पे जो कि सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है h हाइट पे, तो अगर यहाँ बॉडी को रखा जाए स्मॉल m मास की, तो इन दोनों के बीच की सेंटर की डिस्टेंस इट विल बिकम r प्लस h. तो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B. तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम A टू B? सो इट इज इंक्रीज या चेंज. इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स B पे, माइनस A पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यू बी की वैल्यू पुट करिए है माइनस, ये यू ए की वैल्यू है ब्रैकेट में विद माइनस साइन. इस माइनस के कारण ये प्लस हो गया, और मैंने इसको पहली टर्म बना दिया और इसको सेकेंड, तो ये आ जाएगा इसका प्लस GMM अपॉन आर माइनस इसका GMM अपॉन आर प्लस एच. Here GMM is common, so take GMM common, so you will get this equation. Take LCM, LCM लेंगे, R प्लस एच इधर आ जाएगा और कैपिटल R इधर, ये R और R कट गया, ये आ गया हमारे पास. तो ये हमारे ब्रैकेट में जो था उसको सिंप्लीफाई करके आया. Now if H is less than R, you know radius of Earth is 64 lakh 450, and if this H is very small से equal to 10 मीटर, तो 64 लाख में 10 मीटर जमा नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा. सो मैं R प्लस एच को आई कैन राइट इट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R. सो R प्लस एच को कैपिटल R लिख दिया ये, सो ये बन गया R स्क्वायर. सो रीअरेंज इट, ये GM और ये R स्क्वायर मैंने यहाँ इकट्ठा करके लिख दिया, और ये स्मॉल m एंड h. यू नो दिस ब्रैकेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, g के बराबर, GMH, और यू कैन राइट MGH. सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज MGH. नो इफ यू वांट टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज जब H इक्वल टू R, इट इज़ नॉट स्मॉल. अब ये B पॉइंट जो है काफ़ी दूर है सरफेस ऑफ अर्थ से, और ये हाइट 64 लाख मीटर है. H इज़ नॉट स्मॉल. इफ H स्मॉल था तो हमने यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया, R प्लस एच को R के बराबर लिख दिया. सो इन दिस केस UA सरफेस पे एनर्जी यहाँ पे ये आई, B पॉइंट पे अगेन R प्लस एच, लेकिन ये
H is equal to R. So I can write, but H is equal to R. So यहाँ पे इस H की जगह पे R. So ये आ गया हमारे पास. Now again increase in gravitational potential energy delta U is equal to UV minus UA. ये UV की वैल्यू माइनस और ये ब्रैकेट में माइनस के साथ इट इज़ वैल्यू ऑफ U सबस्क्रिप्ट A. अगेन इट विल बिकम प्लस. तो इसको पहली टर्म लिख दिया हमने और इसको दूसरी टर्म GMM अपॉन R इज कॉमन. सो अंदर रह गया 1 माइनस हाफ. सो इट इज़ इससे आएगा आपका हाफ. सो GMM अपॉन 2R. देन आई कैन री राइट इट स्मॉल m अपॉन 2. ये स्मॉल m और 2 इनको मैंने इकट्ठा कर लिया इनटू GM अपॉन R. ये m/2 और ये GM अपॉन R इट इज़ इक्वल टू GR. यू नो G इज GM अपॉन R स्क्वायर. दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए कैपिटल R से. तो दिस इज GM R स्क्वायर इंटू R. दोनों तरफ G कैपिटल R से मल्टीप्लाई किया. सो इट इज GR इज इक्वल टू GM/R. सो दिस इज GM/R इज इक्वल टू GR. So it is mgr/2, increase in gravitational potential energy. Now energy of a satellite. This is a satellite of mass small m. It is moving around, say, Earth. Its mass is capital M. And radius of orbit of satellite is small r. And this is the orbital velocity of satellite. So as you know, this satellite needs centripetal force. तो इसके ऊपर सैटेलाइट के ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रही है. दैट इज गिवन बाय दिस GMM अपॉन R स्क्वायर. सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज mv0 स्क्वायर बाई R. इसकी वेलोसिटी v0 है. सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. सो इन दोनों को इक्वेट कीजिए. तो ये राइट हैंड साइड इसकी और इसकी इक्वेट कर दी. एक R कट गया, ये M कट गया. सो v0 इज GM अपॉन R. हम इसको पहले ड्राइव कर चुके हैं. सो इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. इट इज इन मोशन. सैटेलाइट इज इन मोशन, सो इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी. At the same time it will have gravitational potential energy. Gravitational potential energy of satellite is due to force on it. अगर फोर्स लगती हो कहीं पे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी. इफ देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो इट्स कॉज इज फोर्स. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कारण फोर्स है. तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट m मास ऑफ सैटेलाइट, v0 इसकी वेलोसिटी उसका स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने ड्राइव किया था. इट इज़ इक्वल टू माइनस g प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाय दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस. याद. नाउ v0 की वैल्यू ये रही GM अपॉन R. सो अंडर रूट. सो दिस इज़ वैल्यू ऑफ v0 और इसका स्क्वायर है. ये अंदर v0 की वैल्यू और इसका स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर लेंगे, ये रूट हट जाएगा. सो ये आ गया. नाउ टेक GMM अपॉन R कॉमन. सो यू विल गेट हाफ माइनस 1. इट विल बी माइनस हाफ. तो ये आ गया हमारा टोटल एनर्जी. If you look carefully at this expression, the only difference between expression of total energy and gravitational potential energy is of 2. ये total energy है और जो potential energy होती है दो bodies की जिनके बीच की distance small r होती है, ये है. So माइनस भी इसमें होता है potential energy में, सिर्फ नीचे दो नहीं है बस. Now very important relations between these three types of energies. E total is equal to this. ये रहा हमारा रिलेशन. इसमें मैंने हाफ को अलग निकाल लिया और ये जो ब्रैकेट में चीज़ है दिस इज EP. सो ET इसको मैं EP लिखता हूँ. E total is equal to half of potential energy. Then E के काइनेटिक एनर्जी
ऑफ सैटेलाइट एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू, एम बाई टू, और ये वी नॉट की वैल्यू इसका स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, ये आ गया। नाउ वी कैन रीराइट इट, ये माइनस और ये माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, यही चीज़ आ जाएगी। मैंने माइनस लगा लिया और ये माइनस माइनस आई रिपीट, ये फिर प्लस हो जाएंगे, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये ब्रैकेट वाली चीज़ इफ़ यू लुक केयरफुली, ये टोटल एनर्जी है दिस, तो ये माइनस रहेगा और ये ब्रैकेट वाली चीज़ टोटल एनर्जी। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इन मैग्नीट्यूड बराबर हो। अगर आपकी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट -20 जूल है, दिस इज ई टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी 20 होगी, साइन को छोड़ दो, दिस बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नहीं आएगा, आपका स्क्वायर है, सो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। देन नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी यू नो इसके इक्वल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ये रही काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो काइनेटिक एनर्जी, इसको आप हाफ बाहर ले लिया और माइनस यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, ये ब्रैकेट वाली चीज़ इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। सो माइनस हाफ ऐसे ही रहेगा और ये ब्रैकेट वाली चीज़ दिस इज ई पी, पोटेंशियल एनर्जी। So we can say kinetic energy is negative of half of potential energy, or you can say EP, potential energy is equal to 2 times kinetic energy. Then EP is equal to this. This is the expression for potential energy. You can write this side like this, minus gm upon r, और small m हमने अलग कर लिया। If you remember, this is expression for gravitational potential at point P. So it is V subscript P into M. So this is about various relations which are very important from numerical point of view. So now another numerical. These are 4 masses placed at the vertices of square of side small r. Calculate gravitational potential energy of this arrangement. Side is small r. So if we have two bodies, तो ये उनकी gravitational potential energy होती है। Where r is the distance between two bodies. तो दो bodies के बीच में force of attraction, तो उनकी gravitational potential energy होगी। Now here ए पे जो बॉडी और बी पे बॉडी है, इनके बीच में फोर्स होगी, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इट विल यूज ए बी, मतलब ए और बी पे जो बॉडी रखी है उनकी पोटेंशियल एनर्जी। इसके बीच में और इसके बीच में भी फोर्स होगी, सो इनकी पोटेंशियल एनर्जी यू बी सी, मीन्स बी और सी पे जो बॉडी है उनकी। सिमिलरली सी और डी जो बॉडीज है इनके बीच में फोर्स, तो उनकी। फिर डी और ए के बीच में उनकी। फिर ए और सी भी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इनकी भी पोटेंशियल एनर्जी, और बी पे और डी पे जो रखा है ये भी अट्रैक्ट करेंगे। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू बॉडीज, दोनों का भार स्मॉल एम, इट विल बी माइनस जी एम इंटू एम, दोनों का मास एम इंटू एम, एम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। सिमिलरली इन दोनों की भी इतनी ही आएगी, सी और डी वाले की भी इतनी, और डी और ए पे जो है उनकी भी, तो 4 टर्म्स हो गई हमारी जिनकी सेम वैल्यू होगी। नो इसकी और इसकी ए और सी, इनके बीच की डिस्टेंस ये आर है, ये भी आर है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी √2 इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू ए सी। नो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है √2r, सो इससे डिवाइड करेंगे इसको, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी √2r, सो इन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सो ये ब्रैकेट वाली टर्म्स 4 हैं, तो ये -4 gm² अपॉन r, और इसमें ये 2 टर्म्स हैं, तो ये -2 टाइम्स हो गई है। इसमें g इट इज़ -4, 2 अपॉन √2 इज इक्वल टू
2/√2 इज √2, सो इसको मैंने 2/√2 को √2 लिख लिया. टेक g m²/r कॉमन, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of system of these two four bodies which are placed at the corners of a square of side r. Another and last numerical. A satellite is orbiting earth at a height of 500 किलोमीटर. ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इट इज 500 किलोमीटर. रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन, इट इज कैपिटल आर, इस वैल्यू इज गिवन 64 लाख किलोमीटर बनेगा. एंड कैलकुलेट मास ऑफ सैटेलाइट इज ऑल्सो गिवन एंड मास ऑफ अर्थ इज ऑल्सो गिवन. जी की वैल्यू ये है. सो क्वेश्चन इज what is the total energy of the satellite, then kinetic energy of satellite and potential energy of satellite. So first let me calculate the total energy. अच्छा, what is the distance between centers of satellite? ये इसका भार small m, अर्थ का भार capital M. So this is the gravitational potential energy. Here this is equal to h. तो ये कैपिटल आर प्लस एच, इट इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. यू कैन, दिस इज योर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट. सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच. 6400 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर 6900 किलोमीटर एंड इन मीटर इतना लिखा जा सकता है. सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज स्मॉल आर एंड स्मॉल आर हमने निकाल लिया. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स. तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी. पुट वैल्यूज सबकी दी हुई है. ये मास ऑफ अर्थ गिवन, मास ऑफ सैटेलाइट गिवन, ऑर्बिट का रेडियस, ये वैल्यूज पुट करके ही आ गया. एज आई टोल्ड यू रिसेंटली दैट काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. सो नेगेटिव ऑफ दिस टोटल एनर्जी इज 8.7 × 10⁹ जूल. Also I told you this potential energy is 2 times the total energy. So this is 2 और ये है हमारी total energy. तो ये आ गया -17.4 × 10⁹ joule. Then comes, will your answer alter if Earth were to shrink to half of its size without any change in its mass? सी टोटल एनर्जी हो चाहे हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी, ये मास के ऊपर डिपेंड करती है. अर्थ का मास नहीं चेंज हुआ, सैटेलाइट का मास नहीं चेंज हुआ. ये भले ही देखिए इधर नौ अर्थ जो है इतनी सी रह गई, इसका साइज छोटा हो गया, ठीक. लेकिन जो रेडियस है सैटेलाइट का वो तो वही रहा, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुई. अर्थ चाहे इतनी है तब भी ये डिस्टेंस इतनी रहेगी, और इतनी बड़ी है अर्थ तो भी सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल आर ही रहेगा. रिपीट, ये छोटे वाले साइज़ में है अर्थ तो ऑर्बिट का रेडियस, सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस इट इज़ स्मॉल आर. अगर अर्थ साइज में इतनी बड़ी हो, मास उतना ही रहे, तब भी दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर ही रहेगी. तो वी कैन से स्मॉल आर विल नॉट चेंज, स्मॉल आर विल नॉट चेंज. यहाँ फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो एच है वो हमारा कम है, और अगर इतनी होती हमारी अर्थ जो अंदर वाला हमारा स्फेयर है तो एच हमारा ज़्यादा हो जाता है, ये एच बढ़ जाता है और रेडियस इसका अर्थ का कम हो जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कल हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट ओवर. सो थैंक यू वेरी मच.